بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تاریخ ہے اس مرد مجاہد کی جس نے تخت و تاج ہونے کے باوجود بھی گھوڑے کی پیٹھ پر اللہ کی راہ میں اپنی ساری زندگی لگا دی۔ یہ تاریخ ہے اس مرد مجاہد کی جس نے ہندوستان میں اللہ کے دین کا پیغام پھیلایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کیا۔ سلطان محمود غزنوی۔ سلطان محمود غزنوی اور ہندوستان، ایپیسوڈ نمبر 10۔ خوارزم کی مہم سے فارغ ہونے کے بعد عبداللہ قراتگین ایک روز اپنے باپ کے پاس انتہائی اداس اور افسردہ بیٹھا ہوا تھا، اس لیے کہ قراتگین سخت بیمار تھا اور اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں تھی۔ اور اس موقع پر اس کمرے میں عبداللہ کے بھائی سنجر اور اس کی بیوی ارجان کے علاوہ وہاں احمد نیالکین، اس کی بیوی پاشان، احمد نیالکین کا بھائی عثمان اور اس کی بیوی اور عبداللہ کی بہن خسار سب اداس اور افسردہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ایسے میں حویلی کے دروازے پر دستک ہوئی۔ دستک کی آواز سنتے ہی سنجر اپنی جگہ سے اٹھا اور کہنے لگا، میں دیکھتا ہوں کون آیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی سنجر کمرے سے نکل گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوٹا، اس کے ساتھ چندوار اور دو اور مسلح جوان تھے۔ چندوار کے آنے پر عبداللہ چونکا تھا، اپنی جگہ سے اٹھا۔ چندوار اور اس کے دونوں ساتھیوں سے اس نے مصافحہ کیا، انہیں اندر لے کر آیا۔ ارجان اور پاشان اور خسار ایک طرف ہو کر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر تک عبداللہ قراتگین چندوار اور اس کے دونوں مسلح ساتھیوں کی طرف غور سے دیکھتا رہا۔ پھر چندوار کو اس نے مخاطب کیا، چندوار تمہارے ساتھ کاشی نہیں ہے۔ عبداللہ کے الفاظ سن کر چندوار اور اس کے دونوں ساتھی رونے والے ہو گئے تھے۔ اداسیاں اور افسردگیاں غم کی صورت میں ان کے چہرے پر رقص کرنے لگی تھی۔ یہ صورتحال سب کے لیے پریشان کن تھی، یہاں تک کہ چندوار بولا اور عبداللہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میں آپ کے لیے ایک انتہائی بری خبر لے کر آیا ہوں۔ اس کے بعد چندوار نے کاشی کماری کی تفصیل اسے بتا دی کہ چند روز پہلے کاشی کماری اپنی بہن سے ملنے کے لیے گئی تھی۔ جب وہ اسے مل کر واپس آ رہی تھی تو دریائے راوی کو پار کر کے جب وہ آنے لگی تو اچانک کچھ مسلح جوان نمودار ہوئے اور انہوں نے راجکماری کاشی کماری کو اٹھا کر لے جانا چاہا۔ اس پر مسلح جوانوں کے علاوہ کاشی کماری نے بھی مزاحمت کی، اس لیے کہ راجکماری کاشی اس وقت مردانہ اور جنگی لباس میں تھے اور اپنا چہرہ بھی ڈھانپے ہوئے تھا، لیکن لگتا تھا کسی نے راجکماری کاشی کماری کے متعلق مخبری کی اور بی ڈھنڈ کے راجکمار گووند راج کو بتا دیا کہ کاشی کماری یہاں آئی ہوئی ہے۔ میرے خیال میں وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ گھات میں رہا۔ جب راجکماری کاشی نے دریائے راوی کو پار کیا تو اس نے حملہ ور ہو کر راجکماری کاشی کو اٹھا لے جانا چاہا، لیکن راجکماری نے بھی مزاحمت کی۔ مسلح جوان بھی آڑے آئے، اس پر ٹکراؤ ہوا اور اس ٹکراؤ کے نتیجے میں راجکماری ہلاک ہو گئی۔ اس کے ساتھ جو مسلح جوان تھے وہ بھی مارے گئے۔ صرف ایک زخمی حالت میں بھاگنے میں کامیاب ہوا اور وہ سیدھا نارائن کی طرف گیا اور صورتحال سے اسے آگاہ کیا۔ چنانچہ نارائن اپنے مسلح جوانوں کو لے کر گیا اور مرنے والوں کی لاش اٹھا لے گئی، لیکن بینہڈ کا راجکمار اپنا کام کرنے کے بعد اپنے مسلح جوانوں کے ساتھ بھاگ گیا۔ یہاں تک کہنے کے بعد چندوار رکا، اس لیے کہ کوشل دیوی دور تک کچھ دیر ایسی ہی صورتحال رہی۔ پھر کوشل نے اپنی آنکھیں صاف کی اور چندوار کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، اب میری بہن کی لاش کہاں ہے؟ میں نے آنے والے مسلح جوان سے پوچھا تھا، اس کا کہنا تھا کہ لاش دریا پار رہی، اور نارائن کا کہنا ہے کہ چونکہ کاشی کماری اسلام قبول کر چکی تھی اور ایک مسلمان سالار کی بیوی تھی، اسی بنا پر اس کی چتا نہیں جلائی جائے گی۔ اس کے ساتھ جو مسلح جوان تھے ان کی لاشیں شمشان گھاٹ کی طرف لے جائی گئی، اور آنے والے نے یہ بھی بتایا کہ نارائن وہاں وقت پر پہنچ گیا اور اس نے ایک جگہ راجکماری کاشی کی لاش کو محفوظ کر دیا ہے۔ اب یہ ساری تفصیل جو مسلح جوان لے کر آیا تھا اس وقت قیصر سے باہر کھڑا ہے، اب آپ وہاں جا سکتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ساری مختصر سے طور پر اس نے عبداللہ کو یہ داستان سنائی۔ عبداللہ نے موت کی خبر سنی تو رونے لگا اور اس کے سسرال والے بھی اداس اور افسردہ ہو گئے تھے۔ خسار اپنے بھائی کے گلے مل کر رونے لگی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے تھے۔ اس موقع پر مسہری پر پڑے بے سود قراتگین نے دو بار بڑی مشکل سے آنکھیں کھولتے ہوئے عبداللہ اور روتی خسار کی طرف دیکھا۔ آخر سنجر آگے بڑھا، اپنی بہن خسار کو پکڑ اس نے علیحدہ کیا۔ اس موقع پر احمد نیالکین بھی عبداللہ کا شانہ تھپتھپایا اور کہنے لگا، میرے بھائی، اس میں کوئی شک نہیں، یہ ہمارے لیے ایک انتہا درجے کی بری خبر ہے، پر قاتل اگر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہم سے بچ جائیں گے تو ہم ایسا ہونے نہیں دیں گے۔ ابھی تھوڑی دیر تک میرے ساتھ مستقر کی طرف چلو، اپنے کچھ مخبر کو مقرر کرتے ہیں جو ہندوستان کی سرزمینوں کی طرف جائیں گے اور بیڑھنڈ کے راجکمار گووند راج پر نگاہ رکھیں گے۔ جو ہی اور جب بھی ہمیں وہ کسی مناسب جگہ پر ملا، اس کا اور اس کے ساتھیوں کا خاتمہ ہم ضرور کریں گے۔
कुछ देर ऐसा ही उदास समा रहा, फिर अब्दुल्लाह चिंदवार और उसके दोनों साथियों को मुखातिब करके कहने लगा, तुम चंद रोज हमारे पास क़याम करो, हमें भी खिदमत का मौका दो, इसके बाद वापस जाना। इस पर चिंदवार कहने लगा, अब्दुल्लाह, आपकी बड़ी मेहरबानी कि आपने हमें ये पेशकश की, लेकिन हम एक रात गजनी से बाहर एक सराय में क़याम कर चुके हैं। हम समझ रहे थे कि यहाँ के लोग हमारे लिए नुकसान का बाइस बनेंगे, लेकिन हमने कहीं भी अपने लिए खतरा महसूस नहीं किया। हम क़याम नहीं करेंगे इसलिए कि राजकुमारी कौशल देवी का हमारे लिए हुक्म है कि फिलफौर वापस आकर पूरे हालात उसे आगाह करे। कौशल को काशी के मरने का बेहद दुख और गम है। वो बेचारी खुद उन दोनों मुसीबत में घिरी हुई है। राजा जयपाल सानी कश्मीर से वापस लाहौर पहुंच चुका है। इसका इरादा है कि कौशल की शादी बीडहन के राजकुमार गोविंद राज से कर दे, जबकि कौशल ऐसा नहीं चाहती। मैं आप लोगों पर यह भी इंकिशाफ करूं कि नारायण, जिसका इससे पहले मैंने अपनी गुफ्तगू में जिक्र किया है, वो कौशल और काशी दोनों को अपनी बहन समझता है। और अगर जयपाल ने कौशल पर सख्ती की और जबरदस्ती उसे बीडहन के राजकुमार गोविंद राज से ब्याहना चाहा, तो कौशल नारायण के एक तहिया खाने में मुंतकिल हो जाएगी और उस वक्त तह खाने में रहेगी जब तक हालात उसके हक में पलटा ना खा जाएं। अभी इन दोनों की बात हो रही थी कि खिसार ने चौंक कर अपने बाप की तरफ देखा। उसे कुछ शक गुजरा, उठी और अपने बाप का जायजा लिया, फिर धाड़े मारकर रोने लगी और अब्दुल्लाह की तरफ देखते हुए कहने लगी, भाई, बाबा को देखे उन्हें कुछ हो गया है। खिसार के अल्फाज पर अब्दुल्लाह बेचैन होकर उठा। उसने करातगीन की नब्ज देखी। करातगीन खत्म हो चुका था। अब्दुल्ला ने जब अपने बाप का चेहरा ढांपा तब सब वहां बैठकर आहोजारी करने लगी थी। अब्दुल्ला के कहने पर चिंदवार और उसके दोनों साथियों ने भी एक शब वहां क़याम किया और अगले रोज वो वहां से लाहौर की तरफ कूच कर गए थे। कौशल देवी एक रोज अपनी ख्वाबगाह में इंतहाई मगमूम और फिक्रमंदी की हालत में बैठी हुई थी। उसकी ख्वाबगाह में सुंदरी दाखिल हुई। कौशल को उस हालत में देखते हुए परेशान और फिक्रमंद हो गई थी। आगे बढ़कर वो जब कौशल की टांगे दबाने लगी तब कौशल ने अपनी टांगे सिमट दी और अपने दोनों हाथ सुंदरी के दोनों शानों पर रखे, फिर कहने लगी, सुंदरी, तू मेरी माँ की जगह है, ऐसा ना किया कर। बस तू मेरे पास यहाँ बैठ, तेरी यहाँ मौजूदगी मेरे लिए हौसला मंदी का बाइस बनती है। फिर वो वहां पर बैठ गई और उन्होंने अब्दुल्लाह के ताल्लुक से बातें शुरू की। ख्वारिज़्म की मुहिम कामयाबी से सर करने के बाद सुल्तान महमूद गजनवी ने एक बार फिर अपने लश्कर के साथ कश्मीर का रुख किया, क्योंकि पहली बार जब वो कश्मीर पर हमलावर होने के लिए आया था तब तो वो इस मुहिम की तकमील ना कर पाया था, इसलिए कि उस मुहिम के दौरान ही उसे उसके मुखबिरों ने इत्तला दी थी कि ख्वारिज़्म के हालात उसके हक में अच्छे नहीं रहे। इसी बिना पर कश्मीर की मुहिम को अधूरा छोड़कर सुल्तान महमूद गजनवी ख्वारिज़्म की तरफ मुतवज्जो हो गया था। चुनांचे ख्वारिज़्म के मामलात अहसन तरीके से निपटाने के बाद सुल्तान महमूद ने एक बार फिर अपने लश्कर के साथ कश्मीर का रुख किया। इस मरतबा सुल्तान जब कश्मीर की हुदूद में दाखिल हुआ तो कश्मीर का राजा संग्राम भी समझ चुका था कि पहली बार जो सुल्तान इस मुहिम को अधूरा छोड़ गया था तो ख्वारिज़्म के हालात की वजह से था, और इस बार जो सुल्तान अपना लश्कर लेकर कश्मीर की तरफ बढ़ा है तो वह अपनी मुहिम को पाए तकमील तक पहुंचाए बगैर टलेगा नहीं। लिहाजा उसे न सिर्फ ये कि अपनी जान का खतरा पैदा हुआ, बल्कि उसे ये भी खतरा महसूस हुआ कि अगर उसने सुल्तान से टकराने की कोशिश की तो सुल्तान उसके साथ साथ उसके पूरे लश्कर का खात्मा करके पूरे इलाके को नुकसान पहुंचा सकता है। इसी बिना पर जब सुल्तान अपने लश्कर के साथ कश्मीर में दाखिल हुआ तो राजा संग्राम ने एक अहसन कदम उठाया। वो अपनी उम्रा और सालारों के साथ सुल्तान की खिदमत में हाजिर हुआ और सुल्तान के सामने अपनी इताअत और फरमा बरदारी की दरख्वास्त भेजकर अमान तलब की और अपनी खिदमत गुजारी और खिराज गुजारी का वादा करके एक तरह से उनसे सुल्तान महमूद के गुस्से को फरोग कर दिया था। चुनांचे सुल्तान ने कश्मीर के राजा की दरख्वास्त को मंजूर करके उसके इलाके में कहीं भी किसी जगह पर भी हमलावर होकर नुकसान नहीं पहुंचाया। ये सूरत हाल देखते हुए राजा संग्राम उस जगह अपने उमरा के साथ पहुंचा जिस जगह सुल्तान महमूद ने पड़ाव कर रखा था। जिस वक्त तो सुल्तान के पड़ाव में दाखिल हुआ, सुल्तान महमूद गजनवी ने शानदार अंदाज में उसका इस्तकबाल किया और उसे अपने पहलू में जगह दी। राजा संग्राम जब बैठ गया तब कुछ देर सुल्तान सोचता रहा, फिर उसे मुखातिब करके कहने लगा, तुमने जो इताअत गुजारी की दरख्वास्त भेजी थी उसे मैंने कबूल कर लिया है। तुम्हारे इलाके में कहीं भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, लेकिन इस सिलसिले में तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। सुल्तान महमूद के इन अल्फाज पर राजा संग्राम ने चौंकने के अंदाज में उसकी तरफ देखा, फिर कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, आप हुक्म करें, जो काम भी आप मेरे जिम्मे लगाएंगे मैं उसे एहसन तरीके से इंतहाई इताअत और फरमाबरदारी के साथ पाए तकमील तक पहुंचाऊंगा। इस पर सुल्तान मुस्कुराकर कहने लगा, मैं तुम्हें कोई बड़ी मुजाहमत नहीं दूंगा। मैं दरअसल कुनूज पर हमलावर होना चाहता हूँ, इसलिए कि कुनूज का राजा कुंवर राय जो हिंदुस्तान के सारे राजाओं को मेरे खिलाफ बरगेख्ता कर रहा है, हिंदुस्तान के हालात वो मेरे हक में खराब करने के दर पे है और मैं हिंदुस्तान में अमन और आशती पैदा करने के लिए हर सूरत में कुनूज के राजा कुन्नूर राय को उसके इन हरकतों से बाज रखना चाहता हूँ।
चुनांचे किसी और मुहिम की इब्तिदा करने से पहले मैं कुनूज पर हमलावर होना पसंद करूंगा, इसलिए तुम मेरा एक काम करोगे कि मुकद्दमतुल जैश के हिस्से से तुम कुनूज तक मेरी रहनुमाई करोगे। लेकिन असल मामला यह है कि मैं लाहौर के रास्ते या दूसरे किसी मैदानी रास्ते से कुनूज का रुख नहीं करना चाहता। कश्मीर और इस इलाके के अगले पहाड़ियों के अंदर रहते हुए मैं अचानक दाएं जानिब मुड़कर कुनूज पर हमलावर होना चाहता हूँ, और ये पसंद करूंगा कि कुनूज के राजा को उस वक्त खबर हो जिस वक्त मैं अपने लश्कर के साथ उस इलाके में दाखिल हो जाऊं। अब बोलो इस सिलसिले में तुम क्या कहते हो। सुल्तान महमूद गजनवी के ये अल्फाज सुनकर राजा संग्राम की छाती तन गई थी। कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, ये भी कोई काम है जो आप मेरे जिम्मे लगा रहे हैं। मैं आपके लश्कर के मुकद्दमतुल जैश के हिस्से से कुनूज तक आपकी रहनुमाई करने के लिए तैयार हूँ। कश्मीर के राजा संग्राम का ये जवाब सुनकर सुल्तान खुश हो गया था। चुनांचे चंद रोज तक सुल्तान ने कश्मीर के उन्हीं वादियों में अपने लश्कर को सुस्ताने का मौका फराहम किया। उसके बाद उसने कश्मीर के राजा संग्राम की रहनुमाई में कुनूज का रुख किया था। इस सिलसिले में मुअर्रिखीन लिखते हैं कि कश्मीर का राजा सुल्तानी हुक्म की तामील में हाजिर होकर खिलत खिताब से सरफराज हुआ और सुल्तान के लश्कर के साथ बतौर मुकद्दमतुल जैश रवाना हुआ। सुल्तान ने उसको समझा दिया था कि हम कुनूज, महाबीर और बरंग वगैरह पर हमलावर होकर वहाँ के सारे हुक्मरानों को बर्बाद और साजिशी लोगों को गिरफ्तार करना चाहते हैं, तो हम इस तरह पहाड़ों में सफर करा के ले चलो कि उनके मरकजी मकामात पर पहले से ये खबर ना पहुंच सकी कि कश्मीर के राजा ने रहबरी करके सुल्तान और उसके लश्कर को पंजाब के दरियाओं और गंगा जमुना के दहानों से कोहे हिमालय के अंदर अबूर कराते हुए घाटियों में गुजारते हुए गंगा के दहाने तक पहुंचा दिया है। चुनांचे ऐसा ही हुआ। यह सफर शुरू हुआ और सफर में भी बड़ी तेजी शुरू हुई, और मुअर्रिखीन लिखते हैं कि सफर में सिर्फ हिंदू लश्करियों को जो सुल्तान के लश्कर में थे किसी कदर तकलीफ हुई, बाकी सरहदी अफगानों, खुरासानियों, गोरियों और तुर्कों को कोई अजियत नहीं पहुंची, क्योंकि वो लोग पहाड़ों के रहने वाले और पहाड़ी सफर के आदी थे। बहरहाल सुल्तान महमूद गजनवी का लश्कर कोई हिमालय से मैदान में उतर कर इस तरह यकाएक कुनूज के सामने पहुंच गया कि कुनूज का राजा कुंवर राय सुल्तान के लश्कर की शान और शौकत उसकी अचानक आमद पर हवास बाख्ता हो गया। चुनांचे सुल्तान महमूद के इस अजीब और अचानक हमले और पहाड़ी सफर का हाल एक रूसी मेजर जनरल ने भी अपनी किताब में लिखा है। कुन्नौज के राजा कुंवर राय को जब सुल्तान महमूद के इस तरह शुमाल में रहते हुए कोहिस्तानी सिलसिलों के अंदर सफर करके अचानक कुनूज के करीब आने की इत्तला मिली, तो उसने अपने लश्कर को तैयार किया और सुल्तान का मुकाबला करने के लिए तैयार हो गया। इसलिए कि उन दिनों कुनूज का राजा अपने आसपास के इलाकों में सबसे ज्यादा ताकतवर और साहिब हैसियत राजा ख्याल किया जाता था। चुनांचे अपनी आन बान की तहफ़्फ़ुज़, अपनी अना की पूंजी की हिफाजत के लिए अपना लश्कर लेकर वो निकला, और जो ही सुल्तान महमूद अपने लश्कर के साथ उसके सामने आया, उसने सुल्तान के लश्कर की थकावट से फायदा उठाते हुए एकदम हमलावर होकर अपनी फतहमंदी के दर खोलना चाहे। इसी बिना पर वो फौरन अपने पूरे लश्कर के साथ सुल्तान महमूद के लश्कर पर ख्वाबों के पाताल में बेमानी लफ्जों की बहती राल, उजालों की जुस्तजू को उजारती बदतरीन लम्हों की सियाल की तरह हमला हो गया। सुल्तान महमूद पहले ही से दुश्मन के हमलों का दिफा करने के लिए बिल्कुल तैयार था। चुनांचे उसने भी अपनी कार्रवाई की इब्तिदा की। पहले सुल्तान महमूद ने भी तेजी के साथ हमले शुरू कर दिए थे। कुछ देर तक खुले और वसी मैदानों में दोनों लश्कर बड़े हौलनाक अंदाज में एक दूसरे से टकराते रहे। कुनूज के राजा कुंवर राय को पक्की यकीनी और पुख्ता उम्मीद थी कि फतह मंदी उसकी होगी, लेकिन थोड़ी देर के मजीद जंग के बाद कुंवर राय के सारे गुमान, उसकी सारी उम्मीदें टूट गए थे। इसलिए कि अभी तक सुल्तान महमूद और उसके लश्करों के हमलों में ताजगी और खौफनाकी बरपा थी, और अपने सामने उसका एक लश्करी कुंवर राय के कई लश्करियों को मौत के गहरी नींद सुलाता जा रहा था। फिर कुंवर राय ने यह भी देखा कि मुसलमान लश्करी सुल्तान की कमांडरी में नाप पैदा करने वाले गैर फानी जज्बों की तरह हमलावर हो रहे हैं। ये सूरत हाल जब मजीद कुछ देर जारी रही, तब राजा कुंवर राय के लश्कर की हालत पाताल से उड़ते हुए अंधेरों की तरह हो गई थी। ये सूरत हाल यकीनन कुंवर राय के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। आखिर शिकस्त उठाकर पलटा और कुनू शहर में महसूर हो गया। जहां तक कुनू शहर का ताल्लुक है, तो ये शुमाली हिंद में उत्तर प्रदेश का एक कदीम शहर था। 7वीं सदी ईस्वी में ये राजा हर्ष की सल्तनत का दारुल हुकूमत था। तहजीब और तमद्दुन का बहुत बड़ा मरकज ख्याल किया जाता था। 9वीं सदी ईस्वी में ये हुकूमत पाथारिया का दारुल हुकूमत बना। कुनूज के बादशाहों के दौर में ये इल्म और अदब का मरकज रहा। यहाँ कई आलिम और शायर मारूफ है। बहरहाल शिकस्त उठाने के बाद कुनूज के राजा कुंवर राय शहर के अंदर महसूर हो गया, और अपनी शिकस्त की वजह से उस पर बड़ी दिल शिकनी और एक तरह सुल्तान महमूद गजनवी का
खौफ तारी हो गया था। आखिर कनौज के राजा ने एक बहुत बड़ा फैसला किया। मौरखीन लिखते हैं कि कनौज का राजा कुंवर राय सुल्तान महमूद गजनवी की सिफत खता बख्शी से वाकिफ था और उसको मालूम था और दूसरे लोगों से भी उसने सुन रखा था कि मुसलमानों के आदत और अखलाक का ये इम्तियाजी शान है कि वह हर माफ़ी मांगने वाले को ज़रूर माफ़ कर देते हैं। लिहाजा उसने यही मुनासिब समझा कि अपने गले में दुपट्टा डालकर और अपने हाथ रुमाल से बंधवा कर माँ अपने बेटों और करीबी रिश्तेदारों के महमूद के सामने जा खड़ा हो। चुनांचे इस सिलसिले में अपने सालारों और उमरा से मशवरा किया और सब ने कनौज के राजा कुंवर राय की इस तजवीज़ से इत्तिफाक किया। चुनांचे इस पर अमल करने के लिए कनौज के राजा कुंवर राय ने अपने गले में दुपट्टा डाला, एक रुमाल उसने अपने हाथों में बंधवा कर अपने उमरा और अपने सारे अजीजों और रिश्तेदारों के साथ सुल्तान की खिदमत में हाजिर हुआ और खड़ा हुआ। उसकी हालत देखते हुए सुल्तान फौरन हरकत में उसके हाथ खोले, गले से लगाया और अपने बराबर बैठाया और हर तरह तसल्ली तशफी देकर रुखसत किया। चुनांचे जो हमला उस मेहनत और जाफरदोशी और मुसीबत के साथ किया गया था वो राजा की माफ़ी मांग लेने से लम्हे भर के अंदर ख़त्म हो गया। क्या सुल्तान महमूद का यही सुलूक है जिसे हिंदुस्तान के मौर्रिख उसकी हिंदू कशी कहते हैं? अब उसको महमूद की हिंदू कशी कहलवाया जाए या हिंदू नवाजी समझ ली जाए, ये लोगों की मर्जी है। इसलिए कि अब तक जो हिंदुस्तान के मामले में सुल्तान महमूद पर इल्जामात लगाए गए हैं वो सब बेबुनियाद, झूठे और बातिल हैं। राजा कुंवर राय वाली कनौज ने सुल्तान महमूद और उसके लश्कर की ज़ियाफत की जो सुल्तान गजनी से उसकी सरगोबी का इरादा करके चला था। अब उसका मेहमान अजीज बनकर कनौज में दाखिल हुआ। कई रोज तक उसने वहां क़याम किया। महमूद और उसके लश्करी कनौज में इस तरह घूमते फिरते थे जैसे अपने वतन और भाइयों में होते हैं। मौरखीन लिखते हैं कि राजा की बेबसी कोई पोशीदा बात नहीं थी। उसने निहायत मजबूरी के आलम में सुल्तान से अमान तलब की थी। अगर महमूद वैसा ही होता जैसा कि हमारे यहाँ उससे मुतालिक आम लोगों को बताया जाता है तो हरगिज राजा को माफ़ ना करता, बल्कि उसको निहायत ज़ीरी मौका मिला था कि वो राजा को कैद या कत्ल कर दे। कनौज में कत्ल आम का हुक्म देता, कनौज के मंदिरों को गिराता और वहाँ का तमाम माल असबाब गाड़ियों, चक्करों और ऊँटों पर लाद कर गजनी की राह लेता। इसलिए कि कनौज उस जमाने में अपनी नज़ीर ना रखता था। जिस कदर माल और दौलत कनौज से आ सकता था, हिंदुस्तान के दूसरे शहरों से हरगिज इस कदर माल और दौलत की हुसूल की तौक़ी नहीं थी। फिर महमूद की वजह से कनौज में किसी की नक्सीर तक नहीं फूटी। सुल्तान महमूद ने राजा कुन्नूर राय की दोस्ती को बहुत कीमती समझा और उससे दोस्ती और मोहब्बत के पैमान मुस्तहकम करके और मुखालिफाना साजिशी तहरीकियों से बचे रहने का इकरार कर लिया। अब उसने इर्द गिर्द साजिशी मरकज़ों का पता लगाकर उनको ठिकाने लगाने का फैसला किया। एक हिंदू मौर्रिख लाला बाबू राम सुल्तान महमूद की इस मुहिम से मुताल्लिक भी लिखता है। बहरहाल मौर्रिखीन मजीद ये लिखते हैं कि ये वही कनौज है जिसके राजा ने कभी हारून रशीद के पास अपना तबीब भेजा था और जहां मुसलमानों की आमद और रफ्त सैकड़ों बरस पहले पाई जाती थी, मगर उस जमाने में कोई अहम मुस्लिम कश तहरीक हिंदुस्तान में मौजूद न थी। कनौज का राजा सुल्तान के खिलाफ अनंत पाल और उसके बाप की इमदाद करके नतीजा देख चुका था। उसने अब सुल्तान के आगे सुपुर डालकर और ताल्लुकाती दोस्ती पैदा करके अपनी दानाई और अक्लमंदी का सबूत दिया था। कनौज शहर की नवाह में एक रोज सुल्तान महमूद अपने पड़ाव में अपने सालारों के साथ अपनी अगली मुहिम से मुताल्लिक गुफ्तगू कर रहा था कि ऐसे में कुछ मुखबिर वहां पहुंचे। अपने घोड़ों से उतरे, बुलंद आवाज में सलाम कहा। हाथ के इशारे से सुल्तान ने उन्हें अपने करीब आने के लिए कहा। जब वो सुल्तान के करीब आए तब सुल्तान ने उन्हें मुखातिब किया, क्या तुम कोई अच्छी खबर लेकर आए हो? इस पर उनमें से एक बोला और सुल्तान को मुखातिब करके कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, इस वक्त हम मोहतरम अब्दुल्ला के लिए अच्छी खबर लेकर आए हैं। अब्दुल्ला की बीवी को बीडहंड के राजा कुमार गोविंद राज ने कत्ल किया था। गोविंद राज को यह खौफ तारी हो गया कि उसने अब्दुल्ला की बीवी को कत्ल तो कर दिया है, लेकिन अब्दुल्ला इंतकाम जरूर लेगा, लिहाजा वो जगह जगह छुपता फिर रहा है। अब उसके पास ये खबर पहुंच चुकी है कि आपके लश्कर ने कनौज पर हमला कर दिया है और कनौज के राजा को शिकस्त दी है। जिस वक्त ये खबर उसके पास बीडहंड पहुंची तब उसके हवास बाख्ता हो गए और वो ये ख्याल करने लगा कि मुसलमान अचानक मशरिक में इस कदर दूर कनौज तक पहुंच गए हैं, लिहाजा वो वापसी का सफर शुरू करेंगे और जरूर बीडहंड के रास्ते लाहौर से होते हुए मगरिब की तरफ जाएंगे। लिहाजा अगर वो बीडहंड का रुख करते हैं तो फिर अब्दुल्ला किसी भी सूरत गोविंद राज को जिंदा नहीं रहने देगा और यह भी मुमकिन है कि सुल्तान बीडहंड पर हमलावर हो जाए और बीडहंड राजा पिरेल देव का खात्मा करके बीडहंड को अपनी ममलिकत में शामिल कर ले। इसी बिना पर उन सारे खदशों को निगाह में रखते हुए बीडहंड का राजकुमार गोविंद राज इन दिनों थासीर से चंद मील दूर रामगढ़ नाम के एक कब्जे में क़याम किए हुए है। हम अपने साथियों को इस पर निगाह रखने के लिए छोड़ आए हैं और खुद ये इत्तला देने के लिए हाजिर हुए हैं।
یہ خبر سن کر عبداللہ کا خون کھول اٹھا تھا۔ وہ فوراً اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور پھر سلطان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، سلطان، میرے خیال میں مجھے اس سے بہتر اور سنہرا موقع نہیں ملے گا کہ میں گووند راج پر حملہ ور ہو کر اسے اپنا انتقام لوں اور اس کا کام تمام کروں۔ عبداللہ کے ان الفاظ پر سلطان مسکرا کہنے لگا، عبداللہ، تم ٹھیک کہتے ہو۔ دیکھو بیٹے، ہو سکتا ہے اس مہم کو سر کرنے میں تمہیں کچھ دن لگ جائیں، لہٰذا تمہاری غیر موجودگی میں شاید ہم تمہیں سے کوچ کر جائیں، لیکن ہمارے مخبر تمہیں بتاتے رہیں گے کہ ہمارا لشکر کس طرف گیا ہے۔ تم ابھی اسی وقت جو لشکر تمہارے تحت کام کرتا رہا ہے اس میں سے کچھ مسلح جوانوں کو اپنے ساتھ لو اور تھانسیر کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ تھانسیر کا علاقہ ہمارے لیے بہت محفوظ ہے، اس لیے کہ تھانسیر اب ہمارا شہر ہے۔ اگر اس کی نواح میں کہیں گووند راج نے پناہ لی تو تم بڑی آسانی سے اس سے نمٹ سکتے ہو۔ عبداللہ نے سلطان کا شکریہ ادا کیا۔ سلطان سے اجازت لے کر وہ وہاں سے ہٹا، اپنے خیمے کی طرف گیا، اپنی تیاری مکمل کی، کچھ مسلح جوانوں کو ساتھ لیا۔ اس کے بعد وہ قنوج سے تھانسیر کی طرف کوچ کر گیا تھا۔ اپنے مخبروں کی رہبری میں عبداللہ جب تھانسیر سے چند میل دور تھا تب وہ مخبر جنہیں گووند راج پر نگاہ رکھنے کے لیے چھوڑ گیا تھا وہ سامنے کی طرف سے آئے اور وہ اپنے گھوڑے کو سر پر دوڑا رہے تھے۔ عبداللہ اور اس کے ساتھی قریب آ کر وہ رکے، پھر ان میں سے ایک بڑی تیزی سے کہنے لگا، امیر، تھوڑی دیر پہلے گووند راج نے رام گڑھ کے قبضے ہی میں قیام کیا ہوا تھا، لیکن کچھ ہی دیر پہلے وہ رام گڑھ سے نکل کر مشرق کی طرف روانہ ہوا ہے۔ آپ کے خوف اور ڈر سے وہ زیادہ دن تک ایک جگہ ٹکتا نہیں ہے۔ اگر ہم تیزی سے اس کا تعاقب کریں تو بہت جلد اسے ہم پکڑ سکتے ہیں۔ عبداللہ نے اپنے ان مخبروں کا شکریہ ادا کیا، پھر مخبروں کی رہنمائی میں اس نے مشرق کی طرف اپنے گھوڑے کو سر پر دوڑا دیا تھا۔ اس کے ساتھ تھے۔ عبداللہ نے اس شاہراہ پر سفر نہیں کیا تھا جو سرہند کی نواح سے مشرق کی طرف تھی، بلکہ اس شاہراہ سے دور رہتے ہوئے اس نے ایک کاوا کاٹا۔ جب مخبروں نے اسے اطلاع دی تو اب گووند راج سے آگے نکلے ہیں، تب ایک جگہ عبداللہ اپنے مسلح جوانوں کے ساتھ رک گیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد سامنے کی طرف سے کچھ سوار نمودار ہوئے۔ انہیں دیکھتے ہوئے عبداللہ بھی آگے بڑھا، اس احتیاط کے ساتھ کہ کہیں گووند راج کو شک نہ پڑ جائے اور وہ بھاگ نہ جائے۔ چنانچہ گووند راج جب اپنے مسلح جوانوں کے ساتھ قریب آیا اور عبداللہ قراتگین ان کی راہ روک کھڑا ہوا، تب عبداللہ قراتگین جو سب سے آگے تھا بڑے خوفناک انداز میں گھورنے لگا۔ صرف مخبر جانتے تھے کہ گووند راج کون ہے، عبداللہ نہیں جانتا تھا، اس لیے کہ اس نے اس سے پہلے گووند راج کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ چنانچہ ایک مخبر عبداللہ کے قریب آیا اور اپنا منہ اس کے کان کے قریب لے گیا، کہنے لگا، یہ جو سوار سب سے آگے اس وقت رکا ہے یہی گووند راج ہے۔ ان الفاظ پر عبداللہ کے چہرے پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا، کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ گووند راج دھاڑتی ہوئی آواز میں بولا، تم لوگ کون ہو اور کیوں میری راہ روکی ہے؟ اس پر عبداللہ نے کھا جانے والے انداز میں اس کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، گووند راج، تم اپنے شہر بیدھن سے نکل کر یہ تھانسیر کے ارد گرد میں کیوں خوفزدہ لومڑی کی طرح بھاگتے ہو، چھپتے پھر رہے ہو؟ عبداللہ کے الفاظ کے جواب میں تاؤ کھانے کے انداز میں گووند راج بول اٹھا، اپنی زبان کو لگام دے کر گفتگو کر، تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ تم کس سے گفتگو کر رہے ہو۔ اس پر عبداللہ نے کہنے لگا، میں خوب جانتا ہوں کہ میں کس سے گفتگو کر رہا ہوں، تم جیسے قاتل کی راہ نہیں روکوں گا تو اور کیا کروں گا؟ عبداللہ کے الفاظ پر گووند راج چونکا تھا، پھر جستجو بھرے انداز میں بول اٹھا، کون ہو تم؟ اس پر عبداللہ نے مڑ کر اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا، شاید یہ اس کا مخصوص اشارہ تھا۔ اس پر اس کے سارے ساتھیوں نے اپنی تلواریں بے نیام کر لی، ڈھالیں سنبھالی۔ ساتھ ہی عبداللہ بول اٹھا، گووند راج، میں عبداللہ قراتگین ہوں، غزنی کا رہنے والا وہ شخص جس کی بیوی کاشی کماری کو تو نے لاہور کے نواح میں قتل کیا تھا۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ تم اس طرح بچتے پھرو گے؟ یہی تمہاری موت تم پر وارد ہوگی۔ عبداللہ کے الفاظ ادا کرنے تھے کہ گووند راج کے ساتھیوں نے اچانک عبداللہ اور اس کے ساتھیوں پر تیر اندازی کر دی۔ عبداللہ کے علاوہ اس کے کچھ ساتھی زخمی بھی ہوئے۔ ایک تیر عبداللہ کے بازو پر آ کر لگا، لیکن پھر عبداللہ اور اس کے ساتھی سنبھل گئے۔ آگے بڑھ کر انہوں نے گووند راج اور اس کے ساتھیوں پر حملہ کر دیا۔ گووند راج کے ساتھی تعداد میں زیادہ تھے، ابھی ایک ٹکراؤ شروع ہی ہوا تھا۔ تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ پشت کی جانب سے بھی کچھ مسلح جوان اپنے گھوڑوں کو سر پر دوڑاتے ہوئے نمودار ہوئے اور گووند راج کے ساتھیوں پر پشت کی جانب سے حملہ ور ہو گئے تھے۔ اتنی دیر تک عبداللہ قراتگین نے آگے بڑھ کر خود گووند راج پر ایک خوفناک وار کرتے ہوئے اس کا خاتمہ کر دیا۔ اس کے سارے ساتھیوں کو عبداللہ کے مسلح جوانوں اور پشت کی جانب سے حملہ ور ہونے والوں نے تیزی سے قتل کر کے ایک طرح سے ان کا خاتمہ کر دیا۔ جب گووند راج اور اس کے ساتھیوں کا خاتمہ ہو گیا تب عبداللہ پشت کی طرف سے حملہ ور ہونے والوں کی طرف غور سے دیکھنے لگا۔ جو شخص ان کی رہنمائی اور رہبری کر رہا تھا وہ دبلا پتلا سا ایک لشکری تھا اور اس نے اپنے چہرے پر اپنا خود کا نقاب گرا رکھا تھا۔ یہاں تک کہ عبداللہ نے انہیں مخاطب کیا، عزیز ساتھیوں، میں نہیں جانتا تم لوگ کون ہو، کہاں سے آئے ہو اور بیڑھن کے راجکمار گووند راج پر حملہ ور ہو کر تم لوگوں نے کیوں اور کس بنا پر ہماری مدد کی؟ کیا میں جان سکتا ہوں تم لوگ کون ہو؟
इस पर उनका साला हरकत में अपने घोड़े को लगाकर वो अब्दुल्ला के करीब आया और फिर जब उसने अपने खुद का नकाब उठाया तो अब्दुल्ला दंग रह गया। वो लड़की थी और लड़की भी कोई और नहीं है, काशी कुमारी की छोटी बहन कौशल देवी थी। एक गायब निगाह उस पर डालने के बाद अब्दुल्ला ने कुछ सोचा, फिर कहने लगा, मैं नहीं जानता तुम कौन हो और किन सरजमीनों की तरफ से आई हो और अपने साथियों के साथ क्यों और किस सिलसिले में तुमने हमारी मदद की, लेकिन मेरा दिल कहता है कि तुम। यहाँ तक कहते कहते अब्दुल्ला जब रुक गया तब अपनी खुंखरी नकारी आवाज में कौशल देवी बोल उठी, आप इससे आगे कहते कहते रुक क्यों गए? इस पर अब्दुल्ला मुस्कुरा कहने लगा, मेरा दिल कहता है कि तुम मेरी मरने वाली बीवी काशी कुमारी की छोटी बहन कौशल देवी हो, इसलिए कि तुम्हारे चेहरे के नुकुश किसी हद तक उससे मिलते जुलते हैं। इस पर कौशल देवी के चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हुई, कहने लगी, आपका कहना दुरुस्त है, मैं कौशल देवी हूँ। उस गोविंद राज ने मेरी बहन काशी कुमारी को कत्ल किया था और मैं उसकी घाट में थी तो उसे मौत के घाट उतार दूं। चुनाचे मुझे उन मुखबिरों ने जो मैंने इसके पीछे लगा रखे थे खबर दी कि उसने इन दिनों उन इलाकों में क्या कर रखा है, लिहाजा मैं इधर आई। इसके बाद जब ये मशरिक की तरफ कूच कर रहा था, सामने की तरफ से आप लोग हमलावर हुए, उन पर पुष्ट की जानिब से हम लोग हमलावर हुए। यहाँ तक कहने के बाद कौशल देवी जब रुकी तब गौर से उसकी तरफ देखते हुए अब्दुल्ला कहने लगा, लेकिन तुमने मेरा कत्ल की सौगंध भी खाई थी। अगर तुम मुझसे अपनी बहन का ये बदला लेना चाहती हो कि उसने क्यों मुझसे शादी की तो बदला ले सकती हूँ। अब्दुल्ला के अल्फाज पर कौशल होठ काटने लगी थी। उसकी खूबसूरत आंखों में पहले नमी आई, फिर आंखों से कई कतरे उसके दामन से गिर गए थे, घोड़े की जिम पर जाकर गिरे। साथ ही वो अपने घोड़े से उतरी, मजीद अब्दुल्ला के करीब आई। इतनी देर तक अब्दुल्ला भी अपने घोड़े से उतर गया। उसकी तरफ देखते हुए उसके सारे साथी भी घोड़े से उतर गए। ये सूरत हाल देखते हुए कौशल देवी के साथ ही जो उसके पीछे थे सब घोड़ों से उतर गए। यहाँ तक कि कौशल ने फिर अब्दुल्ला को मुखातिब किया, आपको कत्ल करने से पहले मैं खुद अपने आप को कत्ल कर दूंगी। आपसे तो मुझे अपनी बहन काशी कुमारी की खुशबू आती है, लानत उस पर जो आपके नुकसान और गुज़र पहुंचाने से मुतालिक सोचे भी। उसी दौरान अब्दुल्ला के जो लश्करी गोविंदराज के साथियों के हाथों जख्मी हुए थे, उनके साथी उनकी मरहम पट्टी करने लगे थे। इस मौके पर अब्दुल्ला करातगीन का एक छोटा सालार करीब आया और कहने लगा, अमीर आप थोड़ी देर के लिए बैठे, आपके बाएं बाजू के उत्तरी हिस्सा में जो जख्म आया है उस पर मरहम लगाकर पट्टी बांध देता हूँ। इस पर कौशल देवी चौकी उससे सालार को मुखातिब करके कहने लगी, अगर आप लोग बुरा ना माने तो क्या अमीर अब्दुल्ला की मरहम पट्टी मैं खुद ना करूं, इसलिए कि मेरा इनसे एक ताल्लुक, एक रिश्ता, एक वास्ता है। उस सालार ने जब इस बात में गर्दन हिलाई तब कौशल आगे बढ़ी। उस मौके पर अब्दुल्ला कहने लगा, कौशल तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुम्हारी बहुत मेहरबानी, मेरा साथी मेरी मरहम पट्टी कर देता, मामूली से जख्म है लेकिन बहरहाल इस मरहम पट्टी लगाकर बांधना जरूरी है। इस मौके पर पहली बार कौशल ने गौर से अब्दुल्ला की तरफ देखा, फिर कहने लगी, एक काम मैं खुद भी कर सकती हूँ, ठीक है हम दोनों इससे पहले एक दूसरे को नहीं देख रहे, लेकिन हम एक दूसरे के लिए अजनबी भी नहीं हैं। फिर कौशल और अब्दुल्ला के दरमियान काशी की बातें होने लगी कि किस तरह काशी को कत्ल कर दिया गया। इस पर अब्दुल्ला ने दुख और अफसोस का इजहार भी किया और फिर कौशल की तरफ मुस्कुराते हुए देखकर अब्दुल्ला ने कहा, मुझे यह भी बताया गया था कि तुम्हारे शहर में नारायण नाम का एक सालार है जो तुम्हें और काशी दोनों को अपनी बहन समझता है और बुरे हालात में उसने तुम्हें एक तहे खाने में महफूज करने का एहतमाम भी कर रखा है। देखो कौशल, मैं ये पसंद नहीं करूंगा कि तुम बुरे हालात का शिकार हो। अगर तुम ये समझते हो कि नारायण के यहाँ पनाह लेने के बाद तुम्हारी जान तुम्हारी इज्जत दोनों महफूज रहेंगी तो तुम बखुशी वहां पनाह ले लेना और अच्छे दिनों का इंतजार कर लेना। और अगर ये तुम ख्याल करो कि नारायण के यहाँ तुम गैर महफूज हो तो फिर मेरी तरफ से तुम्हें खुली पेशकश है कि तुम अपने आप को महफूज करने के लिए गजनी आ सकती हो। मैं गजनी में तुम्हें खुशामदीद कहूंगा, तुम्हारी इज्जत और तुम्हारी जान की हिफाजत करूंगा। अब्दुल्ला जब खामोश हुआ तब तशक्कुर आमेज अंदाज में हल्की हल्की मुस्कुराहट में कौशल ने कहा, आपकी इस पेशकश पर मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ, साथ ही ये भी पूछती हूँ क्या ऐसा मुमकिन है कि आप लाहौर आए। इस पर अब्दुल्ला कहने लगे, कौशल मैं लाहौर कैसे आ सकता हूँ, अगर मैं आऊँ तो क्या वहाँ मुझे कोई जिंदा सलामत छोड़ेगा। इस पर खुशकुन अंदाज में कौशल कहने लगी, मेरा मतलब नहीं कि आप इन हालात में लाहौर आए जिस वक्त वहाँ जयपाल हुकूमत कर रहा है। मेरे कहने का मतलब यह है कि सुल्तान का लश्कर बड़े बड़े शहरों को अपने सामने जेर कर रहा है। अब मुझे पता चला है कि सुल्तान कुनूज पर हमलावर हुए हैं और कुनूज की तरफ जाने के लिए उन्होंने शुमाल के कोहिस्तानी सिलसिलों के अंदर ही अंदर सफर किया है। ये बड़ा मुश्किल और कठिन सफर था, मुख्तलिफ दरिया को बुर करना पड़ता था। सुल्तान के खिलाफ हो और उन पर हमलावर होने में क्या सुल्तान की आसानी पेश नहीं आ सकती। इस पर अपने मुंह अब्दुल्ला करातगीन कौशल के करीब ले गया, फिर सरगोशी में कहने लगा, किसी से जिक्र मत करना कौशल, अनकरीब तुम देखोगे कि हमारा लश्कर लाहौर पर हमलावर होगा, इसलिए कि जयपाल अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, बार बार वो सुल्तान के लिए साजिशें बुन रहा है। जवाब में कुछ देर कौशल सोचती रही, फिर कहने लगी, अगर ऐसा होगा तो फिर
कई लोगों की जानें भी ज़ाया होंगी, ऐसे में कहीं भी आखिरत को ना सुधार जाऊं। इसलिए जवाब में अब्दुल्ला कहने लगा, कुशल तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि जब हमारा लश्कर लाहौर आएगा तो हमला से पहले मेरी तरफ से तुम्हारी हिफाजत और तुम्हारे तहफ़्फ़ुज़ का बेहतरीन इंतजाम किया जाएगा। इस सिलसिले में मैं तुम्हें परेशान और फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। जवाब में कुशल ने अब्दुल्ला का शुक्रिया अदा किया। फिर अब्दुल्ला पीछे हटा, अपने घोड़े की बात पकड़ी और कुशल को मुखातिब करके कहने लगा, अब तुम अपने घोड़े पर सवार हो जाओ और मेरे यहाँ खड़े अपने साथियों के साथ अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाओ। इस पर कुशल ने अपने खुद का नकाब अपने चेहरे पर डाला, अपने घोड़े पर सवार हुई और फिर वहां से मशरिक के रुख कर गई थी। कुशल देवी से रुखसत होने के बाद अब्दुल्ला ने भी अभी चंद मील का सफर तय किया होगा कि पुष्ट की जानिब से उन इलाकों में सरगर्दा मुसलमान मुखबिर अपने घोड़ों को सर पर दौड़ाते हुए उससे आ मिले। पुष्ट की जानिब से उन्हें आता देखकर अब्दुल्ला ने अपने घोड़े को रोक दिया और उसकी तरफ देखते हुए उसके साथी जिस कदर मुसले जवान थे उन्होंने भी अपने घोड़ों की बागें खींच ली। पुष्ट की तरफ से आने वाले मुखबिर सीधे अब्दुल्ला के पास आकर रुके। बुलंद आवाज में उन्होंने सबको सलाम कहा। वो कुछ परेशान और हवास बाख्ता थे। उनकी हालत देखते हुए अब्दुल्ला ने उन्हें मुखातिब करके पूछा, तुम्हारे हालात, तुम्हारे चेहरों के तासुरात बताते हैं कि तुम कोई अच्छी खबर लेकर नहीं आए हो, बताओ क्या मामला है। इस पर आने वालों में से अब्दुल्ला की तरफ देखते हुए कहने लगा, अमीर, हम वाकई एक बुरी खबर लेकर आए हैं। लाहौर की राजकुमारी कुशल देवी आपसे रुखसत होने के बाद जब वापस गई तो उसने अभी चंद दिन सफर ही किया था कि बीरहन के राजा प्रेमदेव के कुछ मुसले जवानों ने, जो तादाद में काफी थे, उसे और उसके साथियों को घेर लिया। उन्होंने सबको मारने की धमकी दी और हथियार डालने के लिए कहा। चुनांचे उन्होंने हथियार डाल दिए और अब बीरहट के राजा प्रेमदेव के वो लश्करी कुशल देवी और उसके साथियों को गिरफ्तार करके बीरहन का रुख किए हुए हैं। वो उसे बीरहन के राजा के सामने पेश करेंगे। अगर तो बीरहन के राजा को खबर नहीं हुई कि उसके बेटे गोविंद राज को कत्ल कर दिया गया है, तब तो शायद कुशल देवी या अपने किसी अजीज के हरम में दाखिल कर देगा। और अगर उसे ये खबर की गई कि उसके बेटे गोविंद राज को मौत के घाट उतार दिया गया है और उसे मारने में कुशल देवी का भी हाथ है, तब तो हमें खदशा है कि वो कुशल देवी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसके मुखबिर के इन अल्फाज पर अब्दुल्ला परेशान हो गया। कहने लगा, पहले कहो कि क्या बीरहन के राजा प्रेमदेव के आदमियों को हम बीरहन से पहले पकड़ सकते हैं? इस पर आने वालों में से एक बोल उठा, बीरहन तो बहुत दूर है, हम उन्हें बहुत जल्द पकड़ सकते हैं और उसके लिए हम मुख्तसर, आसान और ऐसा रास्ता इख्तियार करेंगे जो बिल्कुल उनके सामने जानबदार होगा। उस मुखबिर के अल्फाज पर अब्दुल्ला ने इत्मीनान और खुशी का इजहार किया। फिर अब्दुल्ला उन्हें मुखातिब करके कहने लगा, अगर ये बात है तो हम फिर अपने घोड़ों को आगे रखो। मैं बीरहन के राजा प्रेमदेव के आदमियों को, कुशल देवी को बीरहन नहीं ले जाने दूंगा। अब्दुल्ला का जवाब सुनकर सब खुश हो गए। उसके बाद सब अपने घोड़े को लगाते हुए उन मुखबिरों की रहनुमाई में एक बार फिर शुमाल के मगरिब की जानिब अपने घोड़ों को सर पर दौड़ा रहे थे। बीरहन के राजा प्रेमदेव के आदमी, जो तादाद में काफी ज्यादा थे, वो कुशल देवी और उसके साथियों को गिरफ्तार करके ले जा रहे थे। कुशल देवी की गर्दन झुकी हुई थी। वो इंतहाई दर्जे की परेशान और फिक्रमंद थी। उसके साथियों की भी यही हालत थी। जहां तक प्रेमदेव के उन मुसलह जवानों का ताल्लुक था, तो जिस कदर मुसलह जवान अब्दुल्ला के साथ थे, उनमें अगर कुशल देवी के मुसलह जवानों को भी मिला दिया जाए तब भी प्रेमदेव के आदमियों की तादाद 5 गुना ज्यादा रही होगी। चुनांचे बीरहन के राजा प्रेमदेव के मुसलह जंगजू जिस वक्त कुशल देवी और उसके साथियों को लेकर एक शाहिरा से ऐसी जगह से गुजर रहे थे जहां दोनों जानिब घने दरख्त थे, तब अचानक दोनों सिम से सिरसराते हुए तीरों की ऐसी बौछार आई कि बीरहन के उन जंगजुओं में से काफी तीरों से छेद कर अपने घोड़ों से गिर गए थे। यही सूरत हाल बीरहन वालों के लिए वाकई नई और परेशान कुन थी और अभी वो चाहते थे कि अपने घोड़ों से उतरकर जायजा लें कि तीरों की कुछ और बौछारें आई और उनके मजीद साथी अपने घोड़ों से गिर गए। इतनी देर तक दाएं बाएं से कुछ मुसलिह जवान उनकी राह रोक खड़े हुए और उन मुसलिह जवानों से आगे अब्दुल्ला आ खड़ा हुआ। इस अफरा तफरी के आलम में जब कुशल देवी ने राह रोकने वालों के सामने अब्दुल्ला को देखा तो उसकी खुशी और इत्मीनान की कोई इंतहा न थी। अचानक अपने घोड़े को एड़ लगाकर सर पर दौड़ाया और अब्दुल्ला के पहलू में जा खड़ी हुई। इससे कुशल देवी के साथियों ने भी फायदा उठाया और वो भी अपने घोड़ों को सर पर दौड़ाते हुए अब्दुल्ला के साथियों में जा शामिल हुए। कबल इसके कि कुशल देवी अब्दुल्ला को मुखातिब करते हुए कुछ कहती, बीरहन के उन मुसलिह जवानों का जो सालार था उसने अपने आप को संभाला। उसके जो जंगजू अभी तक बचे थे, जख्मी नहीं हुए थे, वो उसके पीछे जमा हो गए थे। फिर उसने अब्दुल्ला को मुखातिब करते हुए पूछा, तुम और तुम्हारे साथी कौन हो? क्यों हमारी राह रोकी है? इस पर अब्दुल्ला बड़ी संजीदगी में कहने लगा, तो मुझे इंतहा दर्जे का हिम्मक और बेवकूफ लगता है। ये कुशल देवी जो तुम्हारे अंदर से भागकर अपने साथियों के साथ मेरे पास आ खड़ी हुई है, तो इससे तुमने ये अंदाजा नहीं लगाया कि राह रोकने वाले कौन हैं। कुशल देवी तुम्हारे पास हटकर किसी अजनबी की तरफ नहीं जाएगी। सुन बीरहन के लश्करों के सालार, मैं मुसलमानों के सुल्तान महमूद गजनवी के लश्कर का एक सालार हूँ। मेरा नाम अब्दुल्ला करातगीन है। बीरहन के राजा कुमार गोविंद रंज ने
मेरी बीवी काशी कुमारी को दरिया रावी के उस पार मौत के घाट उतारा था, लिहाजा मैंने गोविंदराज से अपना इंतकाम ले चुका हूँ। उसे मैं मौत के घाट उतार चुका हूँ। मैं तुम में से सबको बच कर जाने नहीं दूंगा। तुम में से सिर्फ एक जिंदा रहकर वापस जा सकता है, बाकी को यही अब्दी नींद सोना होगा। इस पर बड़ी गजबनाकी में बीढ़न का वो सालार कहने लगा, तुम बकवास कर दो, तुम्हें खुद यहां से जाना नसीब नहीं होगा। उसने यही तक अल्फाज कहे थे कि अब्दुल्ला करातगीन ने फिर मखसूस इशारा अपने साथियों को दिया। उसका इशारा करना था कि तीरों की ऐसी बौछारें लगातार चली कि उनमें से अक्सर मौत के घाट उतार दिए गए। और फिर अचानक अब्दुल्ला करातगीन के इशारे पर उसके लश्करी आगे बढ़कर उन पर हमलावर हुए और एक के सिवा सबको उन्होंने मौत के घाट उतार दिया। जो बाकी बच गए थे, अब्दुल्ला करातगीन उसके पास आया और लर्जा कांप रहा था। अब्दुल्ला ने उसके शाने पर हाथ रखा, कहने लगा, देखो डरो मत, खौफजदा ना हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। यहां से सीधे बीढ़न जाना। बीढ़न के राजा प्रेमदो से कहना कि उसकी बेराह रवैये बेटे गोविंदराज ने गजनी के अब्दुल्ला की बीवी काशी को मौत के घाट उतारा था, लिहाजा गजनी के उस शख्स अब्दुल्ला ने गोविंदराज को मौत के घाट उतार दिया है। बस उसे पैगाम देकर तुम अपने घर चले जाना। अब तुम जा सकते हो, हम तुमसे कोई तारुज नहीं करेंगे। इसके साथ ही वो अपने घोड़े पर सवार हुआ और वहां से चल दिया। उसके जाने के बाद कौशल देवी कुछ देर तक मगमूम और उदास खड़ी रही और अब्दुल्ला को गौर से उसकी तरफ देखता रहा, यहां तक कि अब्दुल्ला ने उसे मुखातिब किया, कौशल अब बोलो, तुम्हारा क्या इरादा है। इस पर कौशल देवी ने आहिस्ता आहिस्ता गर्दन सीधी की, एक गहरी निगाह अब्दुल्ला पर डाली, कहने लगी, अब मेरा लाहौर जाना भी खतरनाक है। गोविंदराज के मरने की खबर बहुत जल्द फैल जाएगी और यह भी मशहूर हो जाएगा कि उसको कत्ल मैंने किया है। लिहाजा लाहौर का नया राजा जयपाल बगैर किसी सोच विचार के मुझे यकीनन बीढ़न के राजा प्रेमदो के हवाले कर देगा और वो मेरे साथ यकीनन ऐसा सुलूक करेगा, बल्कि ऐसा बुरा सुलूक करेगा जिसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। अब्दुल्ला कुछ देर गहरी सोचों में डूबा रहा, फिर कहने लगा, अगर तुम पसंद करो तो मैं अपने कुछ मुस्लिम साथियों के साथ तुम्हें गजनी भेजता हूँ। वहां तुम महफूज रह सकोगी। वहां मेरा भाई है, उसकी बीवी अरजान है, मेरी बहन की सास है, उनके नाम पैगाम भेज दूंगा, वो तुम्हारा ख्याल रखेंगे। और जब तुम देखो कि लाहौर के हालात तुम्हारे हक में दुरुस्त हो गए हैं तो फिर तुम पहले की तरह अपने शहर में आकर क्याम कर लेना। इस मौके पर कौशल ने गहरी निगाह अब्दुल्ला पर डाली, फिर कहने लगी, गजनी में यह ना मेरे साथ किसी का तारुफ है, ना कोई मुझे जानता है, लिहाजा मैं वहां रहकर क्या करूंगी। क्या ऐसा मुमकिन है कि मैं आपके लश्कर में रह सकूं? वहां मैं सब जगहों से ज्यादा महफूज होंगी। वहां ना बीढ़न का राजा मुझ पर हाथ डाल सकता है, न लाहौर के राजा जयपाल मुझे अपना हदफ बना सकता है। कौशल देवी के इन अल्फाज पर अब्दुल्ला को सोचने लगा था कि कौशल ने फिर उसे मुखातिब किया, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि मैं वहां रहते हुए आपके लिए किसी खतरे का बायस नहीं बनूंगी। इस मौके पर हल्के से अंदाज में अब्दुल्ला ने कौशल का सर थपथपाया, कहने लगा, कौशल ऐसी बात नहीं है, बहरहाल अगर तुम लश्कर में रहना चाहती हो तो मैं तुम्हारी ख्वाहिश का एहतराम करूंगा। अच्छा चलो अपने घोड़े पर सवार हो और यहाँ से कूच करते हैं और लश्कर का रुख करते हैं। अब्दुल्ला के इन अल्फाज पर कौशल देवी की खुशी की कोई इंतहा न थी। वो पीछे हटी। जो मुस्लिम जवान उसके साथ आए थे उनके साथ उसने थोड़ी देर बड़ी राजदाराना गुफ्तगू की। चुनांचे वो अपने घोड़े पर सवार होकर वहां से रुखसत हो गई। उछलने के अंदाज में बड़ी तेजी के साथ कौशल अपने घोड़े पर बैठी। अब्दुल्ला और उसके साथी भी अपने घोड़ों पर बैठ चुके थे। उसके बाद वो अपने घोड़ों को मशरिक के रुख पर सरपट दौड़ा रहे थे। महाबिन की फतह के बाद सुल्तान महमूद गजनवी ने दरियाए जमुना के किनारे अपने लश्कर के साथ पड़ाव कर लिया था। एक रोज सुल्तान महमूद गजनवी अपने खीमे में अकेला बैठा हुआ था कि खीमे के दरवाजे पर अब्दुल्ला करातगी नमदार हुआ और सुल्तान को उसने मुखातिब किया, सुल्तान क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? सुल्तान की उस वक्त पीठ दरवाजे की तरफ थी, लिहाजा सुल्तान एकदम मुड़ा। जब उसने अपने खीमे के दरवाजे पर अब्दुल्ला को खड़ा पाया तब सुल्तान अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ, मुस्कुराते हुए अपने खीमे के दरवाजे की तरफ बढ़ा, कहने लगा, बेटे तुम यहाँ खीमे के दरवाजे पर क्यों खड़े हो गए? ऐसी अजनबियत तुमने पहले तो कभी नहीं बरती थी। इस पर अब्दुल्ला मुस्कुराते हुए कहने लगा, सुल्तान आपकी पीठ मेरी तरफ थी, इस बिना पर इजाजत तलब करना जरूरी था। चुनांचे सुल्तान महमूद अब्दुल्ला का हाथ पकड़कर अपने खीमे में ले गया, उसे अपने सामने बिठाया। फिर सुल्तान ने उसे मुखातिब किया, बच्चे पहले ये बता कि जिस मुहिम पर तू गया था उसका क्या बना? जवाब में अब्दुल्ला ने सारी मामला तफसील के साथ कह दिए थे और सब कुछ सुनने के बाद सुल्तान ने बेपनाह खुशी का इजहार किया। कहने लगा, सबसे अच्छी बात कि तुम कातिल गोविंदराज को ठिकाने लगाने में कामयाब हो गए हो। जहां तक कौशल का ताल्लुक है तो लश्कर में उसके क़याम का उम्दा एहतमाम किया जाएगा। उसकी हैसियत हमारे अहम बेटियों से है। अगर वो अब लाहौर के अलावा हर जगह गैर महफूज है तो यकीनन हम उसका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। उसकी जान, उसकी इज्जत, उसकी आबरू की हिफाजत हम करेंगे। पहले ये बताओ कि तुमने उससे इस वक्त कहाँ छोड़ा है? इस पर अब्दुल्ला कुछ कहना चाहता था कि सुल्तान ने उसे मुखातिब किया, पहले मैं तुमसे ये कहूंगा कि तुम्हारी गैर मौजूदगी में जहाँ कहीं भी हमारा पड़ाव हुआ तुम्हारे साथी लश्करी हर बार तुम्हारा खीमा नसब करते रहे हैं। बेशक वो खाली ही रहा है, लेकिन वो एक अकीदत और इरादत मंदी के तहत तुम्हारा खीमा जरूर नसब करते थे। इस पर अब्दुल्ला करातगीन कहने लगा, सुल्तान इस वक्त मैं कौशल को अपने खीमे में ठहरा कर आया हूँ
और बीच में सुल्तान बोल पड़ा और कहने लगा, तुम्हारे खीमे के करीब ही कौशल के खीमे का एहतमाम किया जाएगा और लश्कर में शामिल औरतों में से एक मुअम्मर औरत को कौशल के साथ ठहराया जाएगा ताकि वो अकेलेपन में खौफ और डर महसूस ना करे। बेटे इस वक्त तो अकेली बैठी है, खौफजदा हो रही होगी इसलिए कि हमारे लश्कर में इस वक्त अजनबी है। तुम उसके पास जाकर बैठो, मैं उसके लिए एक खीमा नस्ब करने का हुक्म देता हूँ और फिर उसके बाद तुम खुद ही उसे नए खीमे में मुंतकिल कर देना। सुल्तान का हुक्म पाकर अब्दुल्ला अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। वहां से निकलकर जब वो अपने खीमे में आया तो खीमे से बाहर उसके लश्करी पहरा दे रहे थे और अंदर कौशल देवी डरी सहमी बैठी हुई थी। अब्दुल्ला जब अपने खीमे के दरवाजे पर नमूदार हुआ तो उसे देखते ही कौशल एकदम अपनी जगह पर उठ खड़ी हुई और जब अब्दुल्ला अंदर दाखिल हुआ तब कौशल ने उसे मुखातिब किया, आप सुल्तान के पास गए थे, क्या सुल्तान ने मुझे लश्कर में क़याम करने की इजाजत दे दी है? इस पर अब्दुल्ला ने घूरने के अंदाज में उसकी तरफ देखा, कहने लगा, कौशल तुम क्या बच्चों से बात कर रही हो? तुम क्या समझते हो कि सुल्तान तुम्हें अपने लश्कर में ठहरने की इजाजत नहीं देंगे? सुल्तान ने तुम्हारे लिए बेटी का लफ्ज इस्तेमाल किया है और तुम्हारी जान और तुम्हारी आबरू की तहफ़्फ़ुज़ का अहद करने के साथ साथ तुम्हारे साथ उम्दा सलूक के लिए कहा है। देखो तुम थोड़ी देर बैठो, सुल्तान ने तुम्हारे लिए खीमा नस्ब करने का हुक्म दिया है। इसके साथ ही जो गुफ्तगू सुल्तान के साथ हुई थी अब्दुल्लाह ने कौशल से कह दी थी। सारी गुफ्तगू सुनकर कौशल मुतमईन हो गई और उसी लम्हे उसके लबों पर इंतहाई खूबसूरत मुस्कुराहट नमूदार हुई। फिर अब्दुल्लाह करातगीन को मुखातिब करके कहने लगी, मैं जब तक जिंदा रहूंगी आपके शुक्रगुजार रहूंगी। मैं समझती हूँ कि गोविंद राज के मरने के बाद अब मैं कहीं भी महफूज नहीं। अब तक लाहौर में जयपाल को गोविंद राज के मरने की इत्तला हो चुकी होगी और उसे ये भी बता दिया गया होगा कि गोविंद राज के कत्ल में आपके साथ मैं भी मुलविस हूँ। लिहाजा उसने अपने आदमी मुकर्रर कर दिए होंगे कि मुझे तलाश किया जाए और हर सूरत में बीरहंड के राजा को खुश करने के लिए मुझे गोविंद राज का इंतकाम लिया जाए मुझसे। इस पर अब्दुल्लाह कहने लगा, इसकी ऐसी तैसी जो तुमसे इंतकाम ले, अब तुम बिल्कुल महफूज हाथों में हो और इस सिलसिले में तुम्हें परेशान और फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। अब्दुल्ला जब रुका तब कौशल कहने लगी, मैं आपको एक बात बताना भूल गई, रास्ते में ही बताना चाहती थी पर मेरे जहन से ये बात निकल गई। मैं माजरत कहूँ कि आपसे पूछे बगैर और आपसे मशवरा के बगैर और आपकी इजाजत ले बगैर मैंने एक फैसला किया है। कैसा फैसला? गौर से कौशल की तरफ देखते हुए अब्दुल्लाह ने पूछ लिया। कौशल ने इस मौके पर गहरी निगाह अब्दुल्लाह पर डाली, फिर कहने लगी, आपको याद होगा कि आपने जिस वक्त गोविंद राज का खात्मा किया था तो मैंने अपने साथियों में से एक के साथ राजदाराना गुफ्तगू की थी। मैं चाहती थी कि उस गुफ्तगू से मुतालिक मैं आपको आगाह करूंगी, लेकिन मैं आपसे कहना भूल गई। कैसी गुफ्तगू? अब्दुल्ला ने फिर गौर से उसकी तरफ देखते हुए पूछ लिया। इस मौके पर कौशल कहने लगी, बात दरअसल ये कि मैंने अपने इस मुहाफिज से कहा था कि वो लाहौर पहुंचकर सुंदरी को मेरा एक पैगाम दे कि मेरी ख्वाबगाह में मेरी माँ और मेरे बाप की तरफ से जो कुछ भी सरमाया मुझे मिला था उसके अलावा जो कुछ भी मैंने वहां जमा किया हुआ है वो सब लेकर सुल्तान के लश्कर में पहुंच जाए। मैंने उस मुहाफिज के हाथ ये भी पैगाम भेजा है कि इस सिलसिले में वो जयपाल के सालार नारायण से मिले, वो हमारा भाई बना हुआ है और वो सुंदरी को यहाँ से आपके लश्कर में पहुंचाने का एहतमाम कर देगा। मैंने उसके हाथ ये भी पैगाम भेजा है कि नारायण जिन मुसलह जवानों को सुंदरी के साथ मुकर्रर करे वो ये जानते हुए सफर करे कि सुल्तान ने यहाँ क्याम कर रखा है, कहाँ क्याम कर रखा है। कौशल जब खामोश हुई तब अब्दुल्ला कुछ देर मुस्कुराता रहा। उसकी उस मुस्कुराहट पर कौशल कुछ परेशान हो गई, कहने लगी, लगता है आपको भी मेरा फैसला पसंद नहीं आया। इस पर अब्दुल्ला कहने लगा, कौशल ये बात नहीं है, तुम्हें सुंदरी के हाथों वो सारा सामान मंगवाने की क्या जरूरत थी? देखो कौशल, अब तुम हमारे लश्कर में महफूज हाथों में हो, तुम्हारी हर जरूरत का ख्याल रखा जाएगा। जिस किसी भी चीज की तुम्हें जरूरत होगी तुम्हें मुहैया की जाएगी। कौशल, मेरी बीवी काशी कुमारी मुझे जान से ज्यादा अजीज थी, तुम उसकी बहन हो, लिहाजा तुम्हारी हर जरूरत का ख्याल रखना मेरे फराइज में शामिल है। इस सिलसिले में कौशल कुछ कहते हुए अब्दुल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहती थी कि दरवाजे पर एक लश्कर नमूदार हुआ लश्करी और अब्दुल्लाह की तरफ कहने लगा, अमीर आपके खीमे के पहलू में नया खीमा नस्ब कर दिया गया है। इस पर अब्दुल्ला अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ और कौशल को उसके खीमे में ले गया। सुल्तान महमूद गजनवी ने चंद रोज तक अपने लश्कर को सुस्ताने और आराम करने का मौका देने के बाद मथुरा पर हमला होने का फैसला कर लिया था और वो मथुरा की तरफ चढ़ पड़ा था। सुल्तान के लश्कर में क़याम के दूसरे रोज कौशल अब्दुल्लाह के खीमे के दरवाजे पर नमूदार हुई। उस वक्त अब्दुल्लाह दरवाजे की तरफ पीट के अपने कपड़े तह कर रहा था। दरवाजे पर खड़े होकर कौशल कुछ देर तक उसे गौर से देखती रही, फिर धीमी सी आवाज में कहने लगी, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? कौशल की आवाज पर अब्दुल्लाह चौंका, फिर मुड़कर उसने देखा दरवाजे पर कौशल को देखते हुए खड़ा हो गया। कौशल, तुम्हें यूं दरवाजे पर खड़े होकर इजाजत तलब करने की जरूरत न थी, तुम बिला इजाजत अंदर आ सकती हो। मैं जरा खीमे के दरवाजे की तरफ पीट कर अपने कपड़े तैयार कर रहा था। कौशल अंदर दाखिल हुई और अब्दुल्लाह के सामने बैठते हुए कहने लगी, आप इन कपड़ों को छोड़े, मैं खुद तय कर लूंगी। दरअसल पूर्णिया जरा अपनी पुराने खीमे की तरफ गई है, इसी बिना पर मैं आपके पास चले आई। क्या ऐसा मुमकिन है कि आज मैं शाम का खाना आपके साथ खाऊं, इसलिए कि पूर्णिया आज शाम का खाना वही खाएगी। इस पर अब्दुल्लाह कुछ सोचा, फिर कहने लगा,
कुशल, तुम बड़े अच्छे वक्त पर आई हो। मैं अभी उठकर तुम्हारे खाने से मुतालिक ही कुछ करने लगा था, इसलिए कि आज का खाना तुम मेरे साथ नहीं खा सकूंगी। कुशल चौंकी और कहने लगी, क्यों, क्या हुआ? मैं आपके साथ खाना क्यों नहीं खा सकती? ऐसे कौन सी वजह है? क्या आप मुझे अछूत ख्याल करते हैं? और फिर मैं तो आपके पास दो कामों के सिलसिले में आई थी। पहला मेरा काम यही था कि मैं खाना आज यही खाऊं, इसलिए कि पूर्णिया अपने पहले खेमे में खाना खाकर आई गई है। कुशल जब रुकी तब अब्दुल्ला ने पूछा, तुम्हारा पहला काम तो ये हुआ, तुम खाना खाओगी, दूसरा काम कौन सा है? इस पर कुशल बड़ी संजीदगी में कहने लगी, दूसरा काम मैं उस वक्त नहीं बताऊंगी जब तक आप ये नहीं बताएंगे कि मैं आपके साथ खाना खाऊंगी या नहीं। इस पर अब्दुल्ला कहने लगा, कुशल की तरफ गौर से देखते हुए, कुशल, बात दरअसल है कि तुम लोग गाय को मुकद्दस ख्याल करते हो, तुम्हारे लोग गाय की पूजा पाठ करते हैं। आज चूंकि लश्कर में गाय के गोश्त ही का खाना है, लिहाजा तुम कैसे मेरे साथ बैठ कर खा सकोगी? इस पर हल्का सा तबस्सुम उस मौके पर कुशल के लबों पर नमूदार हुआ और कहने लगा, मैं किसी गाय वाय को मुकद्दस नहीं जानती, न उसकी पूजा पाठ के कायल हूँ। मैं इंसान की अजमत और उसके तकद्दुस के कायल हूँ। इंसान सबसे आला और अरफा है, बाकी जानवर खुदावंद कुद्दूस ने इसीलिए पैदा किए हैं कि चूंकि अंदर चौंकने के अंदाज में अब्दुल्लाह ने कुशल की तरफ देखा, फिर कहने लगा, कुशल, तुम्हारे ख्याल मकामी हिंदुओं से बड़े मुख्तलिफ हैं। कुशल ने फिर तफसील के साथ हिंदू धर्म के ताल्लुक से अब्दुल्लाह को बता दिया था। फिर अब्दुल्लाह ने कहने लगा, कुशल, जो कुछ तुम कहना चाहती थी वो कह चुकी हूँ, मैं सब समझ गया हूँ। इससे पहले इनसे मुतालिक कुछ रोशनी काशी ने भी डाली थी। बहरहाल तुम्हारे ख्यालात जानने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंच गया हूँ का गोश्त ही क्यों ना पका हुआ हो, इसलिए कि तुमने अब तक जो गुफ्तगू की है उससे मैं ये अंदाजा लगा चुका हूँ कि तुमने ना गाय की प्रस्तिश और ना उसके तकद्दुस के कायल रही हो। पहले अगर रही होगी तो वो एक अलहदा बात है, अब नहीं हो। जवाब में कुशल मुस्कुरा कहने लगी, आप ठीक कहते हैं। मैं आप अब पूछेंगे कि मेरा दूसरा काम कौन सा है? अब्दुल्ला मुस्कुरा कहने लगा, वो तो मैं पूछने ही लगा हूँ कि तुम्हारा पहला मसला तो हल हो गया। पूर्णिया के अपने खीमे की तरफ जाने के बाद तुम यही मेरे साथ खाओगी। अब अपना दूसरा काम बताओ। कुछ कहने से पहले कुशल ने गौर से अब्दुल्ला की तरफ देखा, कहने लगी, जो काम मैं आप अब बताने लगी हूँ वो काम मैं चाहती हूँ कि खाना खाने से पहले कर लिया जाए, और वो काम यह है कि मैं इस्लाम कबूल करना चाहती हूँ और हल्का बगोश इस्लाम होकर आपके लश्कर में क़याम करना चाहती हूँ। अब बोलिए, आप इस सिलसिले में क्या कहना चाहते हैं? गहरी मुस्कुराहट में उस मौके पर अब्दुल्ला के चेहरे पर नमूदार हुई। कहने लगा, मैंने इस सिलसिले में क्या कहना है? अगर तुम दायरा इस्लाम में दाखिल होना चाहती हो तो मेरे लिए बड़ी खुशी और तमानियत का बाइस होगा। इस पर कुशल उठ खड़ी हुई और अब्दुल्ला अपनी जगह पर बैठा रहा और कहने लगी, तुम तो कह रही थी कि खाना यही खाओ कर जाऊंगी, अब तुम कहाँ जाने लगी हो? इस पर कुशल मुस्कुराते हुए कहने लगी, आप भी उठिए, मेरे साथ चले। पहले लश्कर के काजी के पास चलते हैं, वहां मैं उनकी मौजूदगी में इस्लाम कबूल करूंगी और दोबारा आपके खीमे में आकर आपके पास बैठूंगी। इसलिए कि अब मेरे लिए एक और काम और मसला उठ खड़ा हुआ है और वो मैं इस्लाम कबूल करने के बाद आपसे आकर बयान करूंगी। खुशी का इजहार करते हुए अब्दुल्ला अपनी जगह से उठा। कुशल को लेकर वो लश्कर के काजी के पास गया, जहां कुशल ने लश्कर के चंद लोगों के सामने मौजूदगी में इस्लाम कबूल कर लिया। इस पर जो लोग वहां बैठे थे उन्होंने अब्दुल्ला को भी मुबारकबादी दी। गुफ्तगू का आगाज फिर दोनों आए और अपने नशिस्तों पर बैठ गए। गुफ्तगू का आगाज अब्दुल्ला ने किया और कुशल को मुखातिब किया, अब कहो, खीमे से निकलते वक्त तुमने कहा था कि तुम्हारे लिए एक और मसला उठ खड़ा है और इस्लाम कबूल करने के बाद इस तीसरे मसले से मुतालिक तुम वापस आकर गुफ्तगू करूंगी। अब बोलो, क्या मामला है? अब्दुल्ला के खामोश हो जाने पर कुछ हिचकिचाते हुए कुशल उसकी तरफ देखती रही। कुछ कहना चाहती थी, कह नहीं पा रही थी, शायद उसे हौसला नहीं हो रहा था। ये कैफियत देखते हुए अब्दुल्ला कहने लगा, कुशल, तुम्हें रुकने या हिचकिचाने की जरूरत नहीं है, खुलकर कहो क्या कहना चाहती हूँ। अब्दुल्ला के इन अल्फाज पर कुशल को कुछ हिम्मत हुई। कहने लगी, मैंने सुना है चंद दिन तक लश्कर मथीरा पर हमलावर होगा और मथीरा की तस्खीर और उसकी फतहयाबी के बाद सुल्तान वापस गजनी का रुख करेंगे। इसलिए कि मुझे बताया गया कि मगरिब के कुछ इलाकों के हालात सुल्तान की तवज्जो के तलब हैं, इसलिए सुल्तान उन इलाकों का रुख करेंगे। जाहिर है पूरा लश्कर मथीरा की मुहिम के बाद गजनी जाएगा और यह भी जाहिर है कि मैं आपके साथ गजनी जाऊंगी। मैं न लाहौर में रह सकती हूँ ना किसी और शहर में क़याम कर सकती हूँ। जो तहफ़्फ़ुज़ मुझे आपके साथ है वो कहीं हासिल नहीं होगा। अब मेरे जहन में सवाल उठता है कि मैं गजनी में आपके यहाँ किस हैसियत से रहूंगी। इस पर अब्दुल्ला ने गौर से कुशल की तरफ देखा, कहने लगा, कुशल, तुम ना मेरे लिए अजनबी हो ना मेरे घर वालों के लिए। मेरे घर में अभी है ही कौन? पहले माँ मर चुकी थी, अब बाप भी मर चुका है। ले देकर एक भाई है और एक बहन है। भाई का नाम संजर है, बहन का नाम खिसार है, और मेरे भाई संजर की बीवी का नाम अरजान है। यानी हमारी हवेली में इन दिनों मेरा भाई संजर और उसकी बीवी रहते हैं। तुम उनके साथ रहोगी और मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि वो काफी बड़ी हवेली है और उस हवेली में मेरे भाई की बीवी और साथ वाले हवेली में मेरी बहन खिसार तुम्हें हवेली के अलावा गजनी शहर में भी अजनबियत महसूस नहीं होने देंगे। अब्दुल्ला जब खामोश हुआ तब घूरने के अंदाज में कुशल बोल उठी, आपने मेरे सवाल का सही जवाब नहीं दिया। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि मैं बहैसियत किस रिश्ते के तहत वहां रह सकूंगी।
अगर आप मजीद खुलकर सुनना चाहते हैं तो मैं ये कह सकता हूँ कि इससे पहले मेरी बहन काशी वहां रहती थी, उसका आपके साथ रिश्ता था और वो आपकी बीवी थी, लिहाजा उसका वहां रहना बनता था। कौशल ने जब ये अल्फाज अदा किए तब अब्दुल्लाह कुछ देर तक गौर से उसकी तरफ देखता रहा, फिर कहने लगा, कौशल, मैं ही नहीं जानता तुम्हारे ख्यालात, तुम्हारे जज्बात मेरे मुतालिक कैसे हैं और किस तरह के हैं। मैं बस इतना जानता हूं कि इससे पहले तुम मेरे खिलाफ थी और जहां तक मुझे बताया गया कि तुम इस बात का भी दुख था कि तुम्हारी बहन लश्कर से निकलकर मेरी मोहब्बत की खातिर गजनी चली गई थी और वहां उसने मुझसे शादी कर ली। मुझे तुम्हारे मुतालिक खबर मिलती रही, इस बिना पर इस वक्त जो बात मेरे दिल में है मैं वो खुलकर तुमसे नहीं कह सकता। हो सकता है मेरे मुतालिक तुम्हारे जज्बात व एहसासात उसका उलट हो। अब्दुल्ला के इन अल्फाज पर हल्की सी मुस्कुराहट कौशल के लबों और खूबसूरत चेहरे पर नमदार हुई। कुछ देर तक उसने अब्दुल्ला की आंखों में आंखें डालकर देखा, फिर कहने लगी, जिस कौशल की इससे पहले आपके मुतालिक ये ख्यालात थे वो कौशल मर चुकी है। यूं जानिए उसका गला घोट कर मैंने उसका खात्मा कर दिया है और फिर उस वक्त जो मेरे जज्बात और एहसासात आपसे मुतालिक थे उनकी मैं आपसे माफी मांग चुकी हूँ और माजरत भी कर चुकी हूँ। अब जो कौशल आपके सामने है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। अगर आप ये कहते हैं कि जो जज्बात उस वक्त मेरे मुतालिक आपके दिल में है मैं उनका इजहार जरूर करूंगी। कौशल रुकी, फिर दोबारा अब्दुल्लाह की तरफ देखते हुए कहने लगी, आप जानते हैं अब ना मेरी माँ है, ना बाप, ना बहन, ना भाई, इस दुनिया में मैं अकेली हूँ और जो कुछ मैंने अपनी जात के लिए करना है वो खुद ही करना है। अब मेरे जज्बात जो आपसे मुतालिक हैं तो कोई दूसरा आप तक मेरे जज्बात ना पहुंचा सकता है और ना पहुंचाएगा, इसलिए कि मेरा ऐसा कोई रिश्तेदार और अजीज है ही नहीं। लिहाजा आज आपके सामने बैठकर मैं खुद इकरार करती हूँ कि मैं आपको पसंद करती हूँ और आपकी जिंदगी का साथी बनना चाहती हूँ। कौशल के इन अल्फाज पर अब्दुल्ला खुशी की कोई इंतहा न थी। कहने लगा, अब मैंने जो कुछ कहना है इसलिए अब मैंने कुछ नहीं कहना, इसलिए कि तुमने ये अल्फाज कहकर गोया सारे ही पर्दे चाक कर दिए हैं। अब मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं। हाँ, मैं तुमसे जरूर ये कह सकता हूँ कि जिस कदर तुम मुझे चाहती हो या पसंद करती हो इससे कहीं ज्यादा मैं तुम्हें चाहता हूँ। अब बोलो। जवाब में कौशल खुलकर मुस्कुराई कहने लगी, अब मैं यही कह सकता हूँ कि हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। मैं ये पसंद करूंगी कि जब मैं गजनी वापस जाऊँ तो आपकी हवेली में आपकी बीवी की हैसियत से वहां दाखिल हूँ। साथ ही क्या ऐसा मुमकिन है कि आज शाम का खाना हम दोनों मियाँ बीवी की हैसियत से इस खीमे में खाएं। मैं अब इस अलहदा खीमे में रहना पसंद नहीं करूंगी। इस पर अब्दुल्ला अपनी जगह से उठा, कौशल को मुखातिब करके कहने लगा, तुम यही बैठो, मैं इस मौजूद पर सुल्तान से बात करता हूँ और फिर देखते हैं कि सुल्तान क्या फैसला करते हैं। कौशल ने इत्तेफाक किया था, चुनांचे अब्दुल्ला खीमे से निकल गया। तेज तेज चलता हुआ अब्दुल्ला सुल्तान महमूद के खीमे के जब सामने आया तो सुल्तान ने उसे आते हुए देख लिया था। जो ही अब्दुल्ला खीमे के दरवाजे पर आया, हाथ के इशारे से सुल्तान ने अंदर आने के लिए कहा। लिहाजा अब्दुल्ला चुपचाप खीमे में दाखिल हुआ, फिर सुल्तान को मुखातिब करके कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, मैं एक इंतहाई अहम काम के सिलसिले में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। यह अल्फाज सुनकर सुल्तान किस कदर मुतफक्किर हो गया। गौर से अब्दुल्ला की तरफ देखते हुए कहने लगा, खैरियत तो है, क्या तुम्हारे लिए कौशल की तरफ से कोई मसला उठा है? जवाब में अब्दुल्ला ने खीमे के अंदर जो कौशल से बात हुई उसकी तफसील कह दी थी। सारी तफसील सुनकर सुल्तान मुस्कुराता रहा, फिर कहने लगा, बेटे ये तो तुम्हारे हक में बहुत अच्छा हुआ। मैं इस हक में हूं कि तुम इससे शादी कर लो। इसमें कोई शक नहीं कि वो लड़की पहले तुम्हारे मुखालिफ थी, लेकिन अब वो तुम्हें पसंद करने लगी है। इससे पहले उसकी बड़ी बहन राजकुमारी काशी भी तुम्हारे अक्त में रही और मैं समझता हूँ कि उसने तुम्हारी बेहतरीन खिदमत की। मेरा दिल कहता है कि कौशल इससे भी बढ़कर तुम्हारी खिदमत करेगी और ये तुम्हारी खुशकिस्मती है कि तुम्हें ऐसी लड़कियां जिंदगी के साथी के तौर पर मिल रही है। तुम ऐसा करो, अपनी खीमे की तरफ जाओ। अभी थोड़ी देर पहले मुझे इत्तला भी मिली चुकी है कि कौशल ने इस्लाम कबूल कर लिया है और मैं उसकी भी उसे मुबारकबाद दूंगा। मैं अभी सारे सालारों को बुलाता हूँ और सब तुम्हारे खीमे में आते हैं और तुम्हारे और कौशल के निकाह का भी एहतमाम करता हूँ। सुल्तान के कहने पर अब्दुल्ला अपनी जगह से उठकर अपने खीमे की तरफ चला गया। जब वो खीमे में दाखिल हुआ तो वहां कौशल बड़ी बेचैनी से उसका इंतजार कर रही थी। जो वो खीमे में आगे बढ़कर कौशल के सामने गया, फिक्रमंद और तजस्सुस भरे अंदाज में कौशल ने पूछ लिया, क्या कहते हैं सुल्तान? अब्दुल्ला मुस्कुराए कहने लगा, पहले इत्मीनान से बैठो फिर बताता हूँ। कौशल बैठ गई, उसके सामने अब्दुल्ला बैठ गया। फिर जो गुफ्तगू सुल्तान के साथ हुई उसने तफसील के साथ कही दी और अब्दुल्ला ने कौशल से कह दी थी। कौशल बड़े गौर से अब्दुल्ला की तरफ देखती रही और कहने लगी, अब मैं समझती हूँ कि मैंने जिंदगी में कुछ नहीं खोया। इसके बाद कौशल अपनी जगह पर उठ खड़ी हुई, फिर अब्दुल्ला को मुखातिब करके कहने लगी, आप यही बैठे, मैं अपने खीमे से अपना जरूर सामान ले आती हूँ। इस पर अब्दुल्ला भी उठा और कहने लगा, तुम्हें अकेले जाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, दोनों सारा सामान सिमट लाता हूँ। अब्दुल्ला की अल्फाज पर कौशल खुश हो गई। दोनों एक साथ चलते हुए साथ वाले खीमे में दाखिल हुए और वहां जिस कदर कौशल का जरूरी सामान था वो अब्दुल्ला अपने खीमे में मुंतकिल कर दिया। थोड़ी देर बाद खीमे में सुल्तान के अलावा लश्कर के काजी सालार में से अरसलान, अब्दुल्ला ताई, अमीर अयाज बिन इसहाक, अहमद नियालकिन, अल्तवान ताश और दूसरे कई सालार और उमरा थे। उन सब की मौजूदगी में लश्कर के काजी ने अब्दुल्ला और कौशल का निकाह पढ़ाया। निकाह के बाद सुल्तान ने अपने लिबास के अंदर से एक थैली निकाली और वो थैली उसने कौशल को दी और उसे मुखातिब करके कहने लगा,
कौशल मेरी बेटी, इस लश्कर में तुम्हारी हैसियत मेरी बेटी जैसी है। चूंकि आज तुम्हारा निकाह हुआ है, लिहाजा एक बाप की तरफ से ये रकम कबूल कर लो, बेटी ये तुम्हारे काम आएगी। कौशल ने चौंक कर सुल्तान की तरफ देखा। सुल्तान के इन अल्फाज से वो ऐसी मुतासिर हुई कि थैली देखकर उसने कपकपाती आवाज में सुल्तान का शुक्रिया अदा किया। उसके बाद सुल्तान ने कौशल को इस्लाम कबूल करने पर भी मुबारकबादी दी। कुछ देर तक सब वहां बैठकर गुफ्तगू करते रहे। फिर जब मगरिब की अज़ान सुनाई दी तो नमाज के लिए सब उठकर खड़े हुए। अब्दुल्ला भी उनके साथ निकल गया। नमाज के बाद अब्दुल्ला जब वापस आया तब बड़े शौक से उसकी तरफ देखते हुए कौशल कहने लगी, आप आज रात को मुझे इबादत करने के सारे तरीके भी सिखाएंगे, इसके अलावा अरकान इस्लाम से मुतालिक भी मुझे तफसील से बताएंगे। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो मैं आज आपको सोने नहीं दूंगी। अब्दुल्ला मुस्कुरा कुछ कहने वाला था कि दोनों का खाना वहां आ गया। अब्दुल्ला ने खाने के बर्तन लेकर खीमे में रखे खाने के बर्तनों पर कौशल ने गहरी निगाह डाली। अब्दुल्ला का कहना दुरुस्त था, खाने में गोश्त आया था। कुछ देर खाने के अशिया की तरफ देखते हुए कौशल मुस्कुराती रही। फिर प्यार और मोहब्बत में वो अब्दुल्ला करातगीन को देखते हुए कहने लगी, क्या मैं अब भी आपके साथ खाना नहीं खा सकती? इस पर अब्दुल्ला करातगीन खिलखिलाकर हंस दिया, कहने लगा, अब तुम तो हर चीज मेरे साथ बैठकर खा पी सकती हो। पहली बात है कि अब तुम मुसलमान हो, दूसरी बात है कि मेरी बीवी हो और मेरी बीवी के हिस्से से तुम मेरी हर चीज के मालिक हो। इस पर मुस्कुराते हुए कौशल कहने लगी, अगर ये बात है तो दोनों मियाँ बीवी पहले एक बर्तन से खाना शुरू करें, फिर दूसरे बर्तन को हाथ लगाएंगे। अब्दुल्ला मुस्कुराते हुए मान गया और उसके बाद दोनों मियाँ बीवी पुरसुकून माहौल में खाना खा रहे थे।